Okay, let's we start with our last topic of the chapter number one. The chapter number one last topic. Those are the that is the topic number 1.4 on the page number 11. So look, it is a page number 11, page 11, and topic number 1.4. That is what taxonomical aids. Aids instruments by which we can carry out our purpose, that is called aids or instrument. As for example, next year in 12 plus 2 level, you will have the one chapter that is the biotechnology. In that biotechnology, it is the coming biotechnological aids. That biotechnological aids means what? Enzymes. So many times सर वो aids कैसे हुआ? Enzyme तो एक chemical है. In other, it is also present in the living. Okay, we accept all that all thing. But what? These enzymes, by this, with the help of this enzyme, we can carry out our function, our purpose, our uh, that all the production, biological productions due to that enzyme. So that enzymes are also one kind of aids, instrument, as well as microbes, bacteria. These are also our aids, because by using this bacteria we have the many product, antibiotics and other things. So they are also our aids, instruments by which we can do our function. They are, that is called as the aids. Taxonomical studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forest, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. Highlight करो यहाँ से, कहाँ से? टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, वहाँ से यहाँ तक, और लिखो इम्पोर्टेंट ऑफ द टेक्सोनॉमिकल स्टडी. One more question is asked, why we should study taxonomy? The answer is this. What is the answer? Taxonomical studies of the various species of the plants and animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of the organism. Correct classification होना चाहिए. तुमने बेट, वो उड़ता है ना, वो बेट बेट BAT एट बेट, वो जो बेट उड़ता है उसको उसको तुम क्या बोल दोगे? बर्ड. दैट रॉन्ग, आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग हो गया. दैट इज द वर्ड, दैट इज द मैमल. यस, इट इज फ्लाइंग मैमल. लाइक अस, वी आर द मैमल. Panthera leo, lion is also mammal. Felis is also, cat is also mammal. Dog, वो भी क्या है? मैमल है. तो वो भी बेड भी क्या हैगा? मैमल है. बट उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करेक्ट होना चाहिए. बरोबर है? क्यों? अभी आगे आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा उसको. दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Identification of the organism requires intensive laboratory and field study. Intensive laboratory तो होती है, but field study बहुत important होता है. Which plant, if you want to study any plant, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? फील्ड में जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, कि जहाँ पे वो कल्टीवेट होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा. एनिमल को भी स्टडी करने के लिए, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा. The collection of the actual specimen of the plant and animal species is essential and is the प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी. उसको कलेक्ट करना पड़ता है ना, वही प्राइम सोर्स है. दीज आर द ऑल्सो फंडामेंटल ऑफ स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स. बरोबर है? यहाँ से टिक मार्क करो. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज. दीज आर द ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स. उसके आगे भी, इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इंफॉर्मेशन गेदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस. इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी. इसको पूरा वहाँ से टिक मार करके बाजू में क्वेश्चन मार्क करो. द क्वेश्चन मार्क है, व्हाई सिस्टमेटिक्स ट्रेनिंग इज इसेंशियल एंड हाउ इट कैरी आउट. सिस्टमेटिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तो ये सब के लिए, और वो कैसे करने में आता है? तो कलेक्शन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, वो सब.
Biologists have established a certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimens. इंफॉर्मेशन राइटिंग में तो आज तो बहुत है, गूगल पेन है, लैपटॉप पेन है, इस पेन है, उस पेन है, एक्सटर्नल डिवाइस पेन है, उस पर तुम स्टोर कर दो तो वो आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर 1000 ईयर भी पता चल जाएगा. बट मेन थिंग इज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन. जहाँ तक वो स्पेसिमेन हमको दिखता नहीं वहाँ तक वो समझ में नहीं आता है. Some of these are the explained to help the understand the uses of these aids. कितने ही एड्स है, उसमें से फर्स्ट है हर्बेरियम. टू स्टडी द प्लांट, टू प्रिजर्व द प्लांट स्पेसिमेन इज हर्बेरियम. हर्बेरियम सीट पहले क्या करने का, तो एक अच्छा प्लांट तुमको जो स्टडी करने का है, जो प्रिजर्व करना है वो लेने का. कलेक्ट इट फ्रॉम द फील्ड along with this short root, stem, leaf. अगर जो छोटा हर्ब है तो श्रब है तो भी मिल जाएगा उसका. इतना बड़ा ट्री होएगा तो भी डेवलपिंग स्टेज में तो उसका होएगा नहीं सब कुछ. वो अपने लेने का, उसको आने लेके एक कॉटन पेपर है या तो हमारा न्यूज़पेपर ही चलेगा. न्यूज़पेपर 4-5 का ऐसा पेड़ बनाने का, ऐसा फोल्ड होता है, उसका ऊपर दूसरे 5 उसके बीच में वो रखने का. कीप इट देर एंड वॉट एंड स्प्रेड इट. उसके जो लीव्स है उसमें फोल्ड नहीं आना चाहिए, पूरा ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए. उसके ऊपर दूसरा वो उसका न्यूज़पेपर 5-6 आपने लिए, एक इधर रखा, वो फोल्ड करके दूसरा यहाँ पे रखा. प्रेस इट फॉर सम डेज 10 to 15 days. ड्यू टू दैट सेलुलोजिक कंटेंट ऑफ दैट न्यूज़पेपर और सेलुलोजिक पेपर वो सब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. प्रेशर से वो पूरा ड्राई होकर फ्लैट हो जाएगा. देन आफ्टर टेक इट. और वो जो पेपर्स आते हैं, ड्राइंग्स, तुम बड़े बड़े ड्राइंग्स हैं वो सब बनाते हो, ऐसा इसका स्पेशल स्पेसिमेन पेपर आता है. वो स्पेसिमेन पेपर लेने का, उसको एकदम केयरफुली रखने का. एंड फेविकॉल, नॉट द फेविकल बट अदर परमानेंट अडेसिव्स आर अवेलेबल. वो अडेसिव उसके स्टेम ने उसके बीच में रख के उसको चौंटा देने का. इस वेले उसको नीडल एंड थ्रेड से बांध भी देने का. एंड उसके राइट हैंड साइड पे उसकी अभी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सब लिख देने की. एंड कीप इट इन योर हर्बेरियम. ये हर्बेरियम सीट को हर्बेरियम में रखने की सब इन्फॉर्मेशन लिख के. वी टू हैव हर्बेरियम इन आवर MS यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ द बॉटनी. दे हैव कीप्ड 25,000 हर्बेरियम सीट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स प्रेजेंट सराउंडिंग वडोदरा एंड अदर एरिया. हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड. मैंने क्या ना पहले उसको ड्राई करने का, प्रेस्ड, उसको प्रेस करके रखने का. प्रीजर ऑन सीट, फिर प्रीजर के साथ सीट पे करने का, वो भी आपको बताया. फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो भी उससे उसको सब रखने का. एक सीट सोलेनेसी फैमिली के यहाँ आएंगे. सोलेनेसी फैमिली जैसी दूसरी फैमिली कौन सी, कॉन्वोलिसी, तो उसके बाजू में आएगी उसके मेंबर्स. पोएसी इज द मोनोकोट एंड दीज टू आर द डाइकोट, तो उससे दूर जाएगी. क्लासिफिकेशन के सिस्टम से कि फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, वो आएगा. दिस स्पेसिमेंस along with the description on herbarium seed, डिस्क्रिप्शन भी लिखने का शॉर्ट में. बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज. The herbarium seeds also carry a label providing information about date and place of the collection. English name, local name and botanical names सब अपने लिखना पड़ेगा. फैमिली, सोलेनेसी है, पोएसी है, क्या है वो. कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट करा उसका नेम, एसेट्रा. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्यू रेफरल सिस्टम फॉर द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़. अब स्टडी करने के लिए अगर जो तुम फील्ड में नहीं जा सकते हो ना, वहाँ से अपने जाके उसको स्टडी करके तुमको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. botanical gardens, these are like the gardens, but this garden is specialized trees and वो सब प्लांट करके रखा है. स्पेशलाइज यानी दूसरे जगह से लाके. वी डो नॉट हैव बोटेनिकल गार्डन इन आवर वडोदरा. इन दैट डांग फॉरेस्ट में वो है ना वघई, वहाँ पे है बोटेनिकल गार्डन. बिसाइड दिस आई हैव विजिटेड बोटेनिकल गार्डन एट देहरादून. फिर कहाँ है वो, ऊटी, उधागामंडलम एंड समवेयर इन दैट मसूरी. यहाँ के सब के मैंने बोटेनिकल गार्डन को मेरे स्टडी के टाइम पे विज़िट करा है. तो हमको तो गार्डन ही लगते हैं.
वहाँ कॉमन पीपल आते रहते, बैठते हैं, खाते पीते, नाश्ता करते, मौज करते, चले आते। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो आते हैं तो वो ट्री पे उसका सब लेबल होता है, वो स्टडी करते, उसका फोटोग्राफ्स लेते, उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, एज वेल एज वो इंफॉर्मेशन लेके ना वो वहाँ पे वो गार्डन का जो इंचार्ज होता है उसके न पास में आते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सब होता है। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव collection of living plants for references. Plant species in these gardens are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. The famous botanical garden which are internationally famous are the Kew, which is in England, Indian Botanical Garden, हावड़ा, इंडिया, ये अपने मैंने नहीं स्टडी करा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी मैं नहीं गया हूँ। देन आफ्टर म्यूजियम, वेरी फेमस वर्ड म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम, दीज आर नॉट सिंपल म्यूजियम, वो जहाँ पे वो इसकी स्वॉर्ड ने उसका वो रखा था, वो नहीं, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारे यहाँ तो कॉलेज में भी नहीं होता, स्कूल का तो जाने दो। एक स्कूल वाले ने बोले सर हमारे वहाँ पे है म्यूज़ियम। अरे क्या म्यूज़ियम है? म्यूज़ियम को कम से कम मिनिमम 10 to 20 रूम्स तो चाहिए, 10 to 15 रूम्स, फिर वो म्यूज़ियम बनेगा। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम बोल रहे। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और द जार टू प्रिजर्व द सॉल्यूशन। सपोज यू वांट टू प्रिजर्व द फ्रॉग, तो कैसे फ्रॉग को करोगे? तो उसका सॉल्यूशन बनता है। अब फ्रॉग जो है उसको, वो जो मर गया उसके अंदर से वो फ्रॉग को सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट नहीं डालते हैं, यही तो समझाना है। एक ग्लास प्लेट रहती है, कांच की प्लेट, उसके ऊपर फ्रॉग को अच्छे से स्प्रेड करते हैं, जो मरा हुआ है मारा है उसको उसके साथ बांध देते हैं, अच्छा ऐसा बन गया। फिर ये पूरी की पूरी प्लेट वो सॉल्यूशन के अंदर, जार के अंदर उतार देते हैं। As it is ACKC, it is kept inside the solution in the jar, and on the other side of the jar all the informations are given. फ्रॉग तो बहुत कॉमन हुआ, उसका कोई स्पेसिमेन नहीं बना था। हाँ, तुम्हारे स्कूल में होगा, बट दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू हाउ इट इज हेल्पफुल। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पीसीज। प्लांट का भी रख सकते हैं ऐसे, एनिमल का भी रख सकते हैं। वेरियस इंसेक्ट्स अलग अलग इंसेक्ट्स को लेके आते हैं, वो जो उसके स्प्रे से वो मर जाते हैं। देन आफ्टर क्या, तो वो इंसेक्ट, एक ऐसी सीट आती है, वो सीट पे 1 by 1 इंसेक्ट रखते हैं, ऐसी पिन आती है। अब हमारी नॉर्मल पिन रहती है ऐसी, वो पिन से उसको स्टिच करते तो अंदर वो फंस जाता है, वो सॉल्यूशन में रख देते हैं। या तो पूरा ऐसा बॉक्स होता है, ग्लास का बॉक्स, उसके अंदर उसमें रख देते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बोलो, बर्ड है कि एनिमल है, मैमल्स का है, तो क्या करने का, उसको डाइसेक्ट करके अंदर के सब उसके सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ निकाल लेने के, बिकॉज मेजर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। तब क्या करने का, उसके अंदर कॉटन एंड अदर थिंग जो भी उसका होता है प्रिजर्वेटिव भर के उसको स्टिच कर लेने का। एंड केयर इज टेकन दैट देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर शुड नॉट बी डैमेज। अब वो ऐसा कि ऐसा पूरा है, उसको रखने में आता है, उसको बॉक्स में रखते हैं, ग्लास बॉक्स में, जो भी उसकी में जहाँ भी उसको प्रिजर्व करना है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। हमारे यहाँ वडोदरा म्यूजियम में देखो, वहाँ पे शार्क का स्केलेटन है, हाँ, एक एलिफेंट के हेड का भी स्केलेटन है, वो साथ के साथ में ही। zoological parks, generally we are calling zoo, there is not zoo but here zoological park. In these zoological parks what happen, मैंने वहाँ पे मैसूर में zoological park का स्टडी करा है। बहुत से लोग आते हैं सब देखते हो, जिराफ भी है, ये भी है, वो भी है, चले आते हैं। बट एज अ साइंस स्टूडेंट, साइंस का मैं अभी अपने फ्यू ईयर्स पहले ही गया था, साइंस स्टूडेंट, क्या आप भी अपने जब जाओ तो क्या करने का, जाके देखो जिराफ है, ये उसके फोटोग्राफ लो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन वो अपने नोट करो। एंड क्यूरेटर, वहाँ का जो इंचार्ज हो, क्यूरेटर के पास जाओ, उसको पूछो कि जिराफ इज़ नॉट ऑफ अवर हियर, इट इज़ वो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर होता है, तो वहाँ पे इसको यहाँ पे कौन सा फूड देते हैं, सीज़न चेंज होती है, उसके फेवरेबल सीज़न नहीं तो उसके लिए क्या टेक केयर करते हैं।
पहले मैंने उसको ने पूछा तो उसको ने लगा थोड़ा बहुत पूछ रहा होगा, फिर मैंने जब ज़्यादा क्वेश्चन करे तो उसको भी मज़ा आया। उसने कितने सब एनिमल्स की कितनी इन्फॉर्मेशन दी। एज वेल मेरे साथ में 2-3 जने वो भी आ गए थे जिनको बॉटनी, जूलॉजी, साइंस का पता ही नहीं था, कॉमर्स के थे वो थे। वो भी इंटरेस्ट से सुनने लगे, उनको भी मज़ा आ गया। अरे यू टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडी एंड दिस होल थिंग, जितना इंटरेस्ट लगो इतना यू विल एंजॉय इट। These are places where wild animals are kept in protected environments under human care, which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitats. देखो यहाँ पे राइनो के फिगर दिए, मैंने राइनो को भी वहाँ पे देखा था। मैंने उसको क्वेश्चन करा कि राइनो यहाँ पे रह नहीं सकता, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखो हमने ये आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है, इस ये अपने पॉन्ड में हम इतना वाटर डालते हैं, उसके साथ में ये सॉल्ट ऐड करते हैं जिससे वो वाटर की डेंसिटी मेंटेन होती है, पीएच मेंटेन होता है, उसके लिए राइनो को वो होता है। एक्चुअली नहीं तो फिर राइनो जो नॉर्मल कंडीशन है उसको तो मिलता ही है, बट यहाँ पे कैसे हुआ, तो उन्होंने सब प्रोवाइड करते हैं। Similar to their natural habits, children love visiting these parks, commonly called zoos. की मीन्स सिंपल, कि कोई भी अनलॉक करने के लिए, जैसे कि ये सब चीज़ है, यू हैव दिस होल थिंग, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट योर salamander salamander is from the family of frog, एंड उसके जैसा ही एक अपने होता है ये वो लिजार्ड, दोनों कॉमन दिखते हैं। दिस इज अ एम्फीबियन एंड दिस इज फ्रॉम द रेप्टाइल्स, फ्रॉम द स्नेक की फैमिलीज, देन क्रोकोडाइल ने वो सब। अब दोनों कॉमन एक जैसे दिखते तो उसकी कोई की तो होगी टू आइडेंटिफाई। यस, एंटीरियर लिम्स, आगे की उसके लिम्स है 4 डिजिट, 1 2 3 4 ओनली। हियर एंटीरियर हैज अ 5 डिजिट। ओके, पोस्टीरियर limbs, all digits are joined by thin skin, स्किन से सब जॉइंट हो गए, 5 है, दो डिजिट भी 5 है, बट देयर स्किन एक वेब जैसा बनता है, सो इट कैन स्विम इन वाटर। हियर ऑल्सो पोस्टीरियर लिम्स हैज 5 डिजिट, बट ऑल डिजिट्स आर फ्री। ऑपोजिट कैरेक्टर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ऐसा है तो क्या है, ये एम्फीबियन है, अगर ऐसा है तो इट इज़ अ लिजार्ड, मीन्स क्या आएगा, वो रेप्टाइल है। एक और एग्जांपल लेंगे, एनिमल का एग्जांपल ये सब समझने में बहुत इजी रहता है। बेट एंड बर्ड्स, बोलो बर्ड्स में कोई एक अपने लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल स्पैरो, स्पैरो कैन फ्लाई, बेट कैन ऑल्सो फ्लाई, बट दिस इज द क्या है, एवियन है, एवियन मीन्स बर्ड्स है, स्पैरो बर्ड्स है, और बेड्स क्या है, मैमल है। तो कैसे, लुक एट इज, डोंट गो फॉर द विंग्स बट गो फॉर इज माउथ रीजन। अगर जो इसके पास इसके पास में बीक है और इसके पास में पूरा फेस एंड माउथ है, यहाँ बीक में क्या है, तो जॉ लेस है, जॉ नहीं है, मीन्स टीथ भी नहीं है, दैट जॉ इज ऑल्सो टर्न्स इनटू वो, तो हम कहते हैं इजीली साइंटिफिकली बोलेंगे टीथ आर एब्सेंस, टीथ आर प्रेजेंस। सो ऑपोजिट कैरेक्टर जो है जिससे हम आइडेंटिफाई कर से, दे आर कॉल्ड इज द कीज। क्या बोलेंगे उसको, कीज बोलेंगे। सो लुक हियर द कीज, key is another taxonomical aid used for identification of the plants and animal based on similarities and dissimilarities. The keys are based on the contrasting character generally in a pair called couplet. अभी मैंने निकाल दिया, तो couplet anterior limbs 4 digit, anterior limb 5 digit, posterior limb 5 digit,
ज्वाइन विद द स्किन वेब लाइक फ्री, है ना। ऑपोजिट, एवरी कैरेक्टर का जो पेयर बनता है उसको कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस एंड मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। कोई है कि हाँ देखो ये अपना दिख रहा है, ये दूसरे को रिजेक्ट करो, ये है, इससे ये लिजार्ड मीन्स रेप्टाइल है, ऐसा। ये स्टेटमेंट इज इन द की कॉल्ड अ लीड। उसको एवरी स्टेटमेंट को लीड कहेंगे, क्या हमको लीड मिली, समझ में आया इससे। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच taxonomic category such as family, genus, species. For identification purpose, keys are generally analytical in nature. हर एक का स्पेशल रहता है और उससे एनालिसिस कर सकते हैं। फ्लोरा मीन्स रिगार्डिंग प्लांट्स, फ्लावर, फ्लोरा। मैन्यूल्स पूरा उसका बोलो, ऐसा पूरा प्लांट का नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, फोटोग्राफ है, इधर प्लांट नेम है, उसका मेन्यूज। वो हम बोलते हैं ना होटल में जाके रेस्टोरेंट मेनू दो, ऐसा पूरा वो मेनू में जैसे एवरी डिश का नेम, उसकी प्राइस में सब कुछ होता है। तो यहाँ एवरी प्लांट का। सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली का फर्स्ट यहाँ पे इंडेक्स रहेगा कि पेज नंबर 1 पे ये 2 पे वो है। चलो फिर है ना नंबर 1, तो ये सोलेनम निग्रम, तो उसका डिस्क्रिप्शन ये तो दो तीन पेज में रहेगा, उसके अलग अलग फोटोग्राफ्स रहेंगे। सोलेनम मेलोंजेना वो भी अपने रहेगा। मोनोग्राफ रिगार्डिंग सिंगल प्लांट, छोटी छोटी बुकलेट बनेगी, मोनोग्राफ। कैटलॉग्स यानी खाली इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन एंड अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव्स। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, उससे तो हमको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी मिलता है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। अब फ्लोरा ऐसे हम बनाने जाएंगे तो इतने सब प्लांट्स का कैसे बनेगा, तो वो फ्लोरा बनता है उसकी बुक मिलती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। डांग फॉरेस्ट एरिया, गिर फॉरेस्ट एरिया, लाइक दैट। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. Manuals are used in providing information for the identification of the names of the species found in that particular area. Monographs contain information of any one taxon. So look, this is the chapter number 1. Very easy. But try to understand and try to learn, because in exam in your school they will ask you description. But for that neat and good kid, they will, for that you should be have the understanding level. अंडरस्टैंड कि क्या बोलता है वो क्या हैगा, पूरा के पूरा ऐसा लर्न नहीं करा है, बट वो तुमको उसको मेन थीम समझ में आती है, यू कैन डू इट. So next time we will start with the chapter number 3. Okay, best of luck.